Hello, everyone, and thank you for tuning in to another episode of Behind the Curtain. Um, I have spoken to lots and lots of writers. I have spoken to directors. I have spoken to producers. I have spoken to actors. I have spoken to filmmakers beyond borders as well. And the idea of the core idea of this small talk is कि हम जो हैं अक्सर बात करते हैं people who are in front of the camera. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो I would say they're also the benchmark, setting the benchmark or setting sort of a professional environment for people who watch these entertainment content and give them wordings. We call them critics. और critics जो होते हैं काफी लोग उनको पसंद भी करते हैं, काफी लोग पसंद करते भी हैं, but they're very blunt in their remarks. So I thought it was very crucial to talk to them because जिन तीन चार लोगों से मैंने बात की उनकी अपने अपने opinions थे. I'm talking about the people who are like directors and producers. So I have with me two professional people who I have also worked with professionally. I know them personally as well, and I like to introduce them. I have Shafiq Siddiqui with me. He's a professional content strategist. He's a content marketer, an active startup and entrepreneurship worker who focuses on outreach digital campaigns in advertising and marketing, and also an entertainment blogger whose work has also been published internationally, and is an active film critic and very vocal and blunt. He's got many reviews published to the Tribune blogs as well. And I also have Rahul Aijaz. He's a professional film critic, film and TV graduate from Zavist, who's also been part of the Asia Journalists Association with the Asian English from South Korea, and has a plethora of film reviews under his belt through the Express Tribune. He's also running Film and Chips independent blog right now, and I think he's working on a short film at the moment, jo inka tha passion tha, and we should be seeing it soon. In collaboration with Goethe Institute, if I'm not wrong. Thank you, Shafiq and Rahul, for joining me for this thing. I hope I got the introductions a little bit correct, and apologies अगर मैंने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया हो, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ. मैं कोई प्रोफेशनल होस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक कोशिश करने लगा हूँ कि we should be just on this thing. So अब लेकिन उससे पहले before I start asking you, how do I know Shafiq and Rahul? बहुत ही मजे की कहानी है. मैंने एक छोटी मोटी फिल्म बनाई थी, कोशिश की थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे फिल्म बनानी नहीं आती थी. तो मैंने कहा भाई मैं बहुत बड़ा फिल्म मेकर हूँ और मेरी फिल्म जो है ना वो ऑस्कर जीतेगी. तो मैंने एक फिल्म बना ली थी. तो उसमें से the first preview which was published on paper and Tribune, I got a call from Rahul Aijaz. I didn't know. I mean, Rahul से मेरा एक पुराना भी एक relationship भी है as well. But at that time I did not know him. So Rahul had given me this amazing coverage for the film because my film was a no film. It was dealing with artists who were not recognized, and his I would say his professional approach, his professional support was appreciated. कोई जानता नहीं था मैं क्या कर रहा था, मैं कौन थे रमशा खान, कौन था बिलाल, कौन था एहसन, ये लोग किसी को भी नहीं जानते थे. एंड इनके थ्रू काफी जो थी मार्केटिंग अच्छी गई थी. और शफीक को मैं कैसे जानता हूँ? शफीक was the first reviewer of my film at that time. जो पहला रिव्यू लगा था मेरे फिल्म का वो शफीक सिद्दीकी का लगा था ट्रिब्यून के अंदर. वो भी काफी मजे का रिव्यू था. तो बड़े ही इन दोनों के साथ एक then obviously Rahul also reviewed the film, and my film was critically bashed and destroyed and put to shame. But then again मैं कोई प्रोफेशनल फिल्म मेकर नहीं था. मैं कोशिश कर रहा था, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था. और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बात भी करेंगे कि इस तरह के मसले क्यों होते हैं. बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग. थैंक यू Shafiq and Rahul for joining me for this session. I'll just start off by saying, and I'll go to one by you, to both of you one by one. Shafiq, आपसे पूछता हूं, अगर आप मुझे बड़े सिंपल मायने में बता दें, what is the definition of a film critic? अस्सलाम वालेकुम राफे, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन और वो पुरानी बातें याद दिलाने के लिए थैंक यू सो मच. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि फिल्म क्रिटिक का क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन क्या है, राइट? जी. ओके, फ्रॉम वेयर आई सी इट, या यूं कहिए कि मैंने जो क्रिटिक्स को पढ़ा है या जिनको मैंने देखा है, जिनको मैंने फॉलो किया है, फिल्म क्रिटिसिज्म जो है इट शुड बी अबाउट फिल्म के अंदर क्या होना चाहिए जिसको वो शोकेस करती है या जिसकी बुनियाद पर वो बनी होती है. उसके अंदर सिनेमैटिक लिबर्टीज भी ली जा सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जा सकते हैं लोग. उसके साथ फिल्म एक मीडियम है जो मैसेज कन्वे करता है, वो मैसेज जो हमारी सोसाइटी के अंदर अक्सर लोग उससे शायद बात करने से कतराते हैं या उस सच को सुनने से घबराते हैं जो हमारे यहाँ
हो रहा होता है, ये एक डेफिनेशन है फिल्म की, और उसको किस तरह से क्रिटिसाइज करना है, कीपिंग इन माइंड कि हमारे सोशल नॉर्म्स क्या है, कल्चर क्या है, उसके साथ हमें क्या आगे बेहतर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। प्लस मैं ज्यादातर बात करता हूँ परफॉर्मेंस की, कंटेंट की, स्टोरी टेलिंग स्किल्स की, सिनेमेटोग्राफी की। तो मेरे नजदीक फिल्म जो है इट्स कंप्लीट पैकेज, और बहुत सारे लोगों की मेहनत उसमें शामिल होती है। कोई अगर ये कहे कि किसी हीरो की फिल्म है, सो सॉरी, शायद मैं उससे अग्री ना कर पाऊं। किसी डायरेक्टर की फिल्म है, बिल्कुल डायरेक्टर की होती है, वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, सब कुछ होता है। मगर अगेन एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाए और एक निहायत ही मीडियोकर सा परफॉर्मर मिले, तो वो चीज निकल के नहीं आती। अगर स्क्रिप्ट अच्छा ना लिखा हो तो वो डायलॉग्स याद नहीं रहते, वो इम्पैक्टफुल चीज नहीं बन पाती। सो मेरे लिए क्रिटिसिज्म इन सब चीजों का एक मजमुआ है, जिसकी बेस पे मैं अपने तौर पे फिल्म्स क्रिटिक करता हूँ। और ये एक मैंने बहुत बड़ी सी मगर छोटी सी डेफिनेशन देने की कोशिश की है, और मैं बहुत आगे बोल सकता हूँ, नहीं मगर नहीं फिलहाल ठीक मैं है, चाहूंगा कि आप लोग एब्सोल्युटली। कंटिन्यू करें। Rahul, in your opinion, how would you define film criticism and a critic? Okay. First of all, man, thank you for having me Not at all. on My your pleasure. session. Yeah, and so what do we call a film critic, right? I think it boils down to a very simple definition. कि एक educated, qualified opinion about the working of a film. Essentially, that's all it is. And again, it's subjective. You cannot say कि मैं journalistic objective approach रख के करूंगा. Everything you write is very subjective, even if you are trying to be very objective. So it at the end of the day, it is an opinion. That's all. But the difference between the opinion of a film critic and the opinion of a layman who just goes to watch a film for fun is that the opinion is qualified and educated enough कि आपको फिल्म देखना आना चाहिए. पहली बात तो ये, a film critic, before he writes about film, he should know how to watch a film, he should know how to read a film, essentially. And that's what separates a good film critic from a film critic that जिस तरह के हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा भरे हुए हैं आजकल. आई मीन शफीक हैज सीन, शफीक नोज. सही है. And that's what separates a good film critic or a qualified film critic whose opinions can be taken seriously. Because एक फिल्म क्रिटिक अगर कहता है कि यार ये मुझे चीज अच्छी नहीं लगी, और फिर वो छोड़ के रिव्यू एंड कर देता है कि this was good, this was bad, that's a bullshit review. you know you can't say that's a good review, because you need to tell us in your writing, in your reviews, why that's something you didn't like, or why is that something so bad that you couldn't tolerate it. you know so everything has to be justified, everything has to have a reason. If I say that that actor's performance is bad in that film, why am I saying it? Maybe because the nuances didn't come off, maybe the complexity of the character wasn't showcased properly, maybe I didn't see that confusion or the trauma or any kind of emotion on their face, and which I can tell, like, अब ज्यादातर फिल्मों में यही होता है यहाँ पे कि आपके कैरेक्टर्स कुछ और हो रहे होते हैं और एक्टर कहीं और जा रहा होता है और वो कोशिश नहीं कर रहा होता. So, like, as a film critic, you need to have an educated opinion. Like, someone, you should have watched at least a million films. Like, of course I'm exaggerating, but you need to have watched all kinds of cinema. A film critic can't, मतलब एक अगर मैं सिम्बा देखने गया, for example, and then I go to watch, uh, perhaps Mulholland Drive by David Lynch, I should be able to judge them both. Yes. I should not be able to say कि यार मुझे वो फिल्म पसंद नहीं आई क्योंकि मेरा टेस्ट वैसा नहीं है. But then you're not a film critic. Then you are just a wannabe, essentially, and that's what essentially it boils down to for me. Okay, so fine. I was able to ask Shafiq the first question, but I'll resume with you and move on to Shafiq. Do you think that we have professional, I would say a systematic, एक कोई हमारे पास है तरीका जिससे हम क्रिटिक्स को स्टैब्लिश करते हैं, क्रिटिक्स को फॉर्मुलेट करते हैं और उनको हम वो सही तरह वो एक आई वुड से एक
प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे वो आके बाकायदा इस चीज को सीखें और सही तरह इसको अपने अपने रिव्यू को जस्टिफाई करें, या बस हम उठ के जो है मैदान में लोग आ रहे हैं लिखना शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े पावरफुल प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस को मिल जाती है? आर वी ग्रूमिंग आवर फिल्म क्रिटिक्स और इट डजंट मैटर टू ग्रूम फिल्म क्रिटिक्स? Dude, you're not even grooming your filmmakers. Sorry, is it me or Shafiq? I'll start with Rahul and I'll go to Shafiq. Say, take it. Okay, go on, Rahul. You're talking about grooming film critics. We're not even grooming our filmmakers. What are you talking about? Right. You know, so that's one thing. And first of all, यहाँ पे तो यही हो रहा है, as you just mentioned, कि कोई भी उठ के आ रहा है and you know they can have a blog, they can have set up their website at home for like 15 minutes and start writing, and they will consider themselves and publicize themselves and present themselves as a legit film critic, but they're not. And 90% of the people who are doing film criticism in Pakistan, they are not really film critics. Ask them about freaking George Méliès, they will be like, "ये कौन है? क्या है? तुम्हें चाचा वाचा थे क्या?" That's this is. I mean, for them, Bobby Deol is the best actor who ever lived, and this is the standard that we have here in Pakistan. You can't say कि आप film critics को groom कर रहे हैं. Internationally, of course, you have these programs, film critics academies होती हैं, proper, Right. where you actually teach them how to write, teach them how to criticize a film, and criticism doesn't mean कि आप उसकी नुक्स निकाल रहे हैं. Film criticism means what the film on its own stands for, and succeed in doing that. कि एक कोई भी फिल्म है उसमें obviously technical भंड भी होते हैं. So when I write about a film, I can forgive the technical flaws if the story, if the soul, if the heart of the film is at the right place. That's what matters the most. आपकी an amateurishly made film like Azad, technically speaking, does have its heart in the right place, then that's why it was a good film to watch. Like, I enjoyed it, and a lot of people may disagree with it, and a lot of people do, and that's completely fine. It's an opinion, right? So, Right. like, first you need to you need to groom your filmmakers before you can groom your film critics. चले एक industry तो बन जाए. we'll get to the grooming part as well. उस पे मुझे करना है बात. Shafiq, and leading on to the question that I asked, के हमारे पास Rahul did answer as well. What would your thoughts be on it, कि यार कि क्या जरूरी है ग्रूमिंग करना? मतलब कि अब तो ब्लॉगिंग शुरू हो गई है, बस उठ के जस्ट लाइक राहुल सर ब्लॉग बना ले, रिव्यू कर लें 3-4 फिल्मों की, आप अच्छे तरीके से उनको बैश कर दें, यू विल गेट द अटेंशन. और इज इट वेरी वाइटल टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एन एकेडमी, वेरी वाइटल फॉर पब्लिशर्स टू ग्रूम पीपल टू राइट? व्हाट वर योर थॉट्स ऑन बियॉन्ड दैट? देखिए, एज फार एज व्हाट आई थिंक, हमारे यहाँ क्रिटिक्स तो आप यूं कहिए कि बाद में एजुकेट हों. सबसे पहले हमारे यहाँ क्या फिल्म मेकर्स, आप इंडस्ट्री का पार्ट रह चुके हैं, आप इंडस्ट्री का पार्ट हैं. आपने कितने फिल्म मेकर्स को देखा होगा जो एजुकेटेड फिल्म मेकर्स हैं या जो क्वालिफाइड फिल्म मेकर्स आप उनको कह लीजिए, वक्त के साथ वो सीखते गए, वक्त के साथ कुछ बेहतरी आती गई, वक्त के साथ कुछ अडॉप्ट करते गए. सिमिलरली हमारे यहाँ क्रिटिक्स का भी यही हाल है. बहुत अरसे से जो लोग लिख रहे थे और वो मल्टीपल एंगल्स पे लिख रहे थे, मल्टीपल टॉपिक्स, मल्टीपल नीश पे लिख रहे थे, स्पोर्ट्स पे लिख रहे थे, करंट अफेयर्स पे लिख रहे थे, फिल्म्स पे लिख रहे थे, एंटरटेनमेंट पे लिख रहे थे, वो सब चीजों पे लिख के अब जिस चीज पे, जिस इंडस्ट्री में बूम आया, वो उस तरफ चले गए. दैट इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन. क्योंकि उन्होंने कहा अच्छा भाई 2011, 12, 10 के बाद एक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एक वो मिली है, बहुत हाइप मिल रही है, सपोर्ट पाकिस्तानी सन्ना मिल रहा है, वो सारी चीजें हो रही है, फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, ड्रामा से उठ के लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो उन्होंने फिल्म बनानी शुरू की. चलो यार हम रिव्यूज भी बहुत सारे लिखने शुरू करते हैं, मल्टीपल पब्लिकेशंस के साथ वो ऑलरेडी लिख रहे थे. सो क्या ये मान लेना कि वो क्रिटिक्स हैं या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और बहुत अलग डिबेट है. क्योंकि वो भी लिखते लिखते मल्टीपल टॉपिक्स को टेस्ट करते हुए, उनका फ्लेवर लेते हुए है. हमारे यहाँ सॉरी टू से कोई क्रिटिक्स को, मेरे इल्म के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई क्रिटिक्स को ग्रूम कर रहा है, क्योंकि बहुत से लोग शायद ग्रूम करना भी नहीं चाहते. क्योंकि अगर किसी फिल्म के बारे में हम सच कह दें, ब्लंटली बात कर दें, तारीफ भी ब्लंटली कर दें और बुराई भी ब्लंटली कर दें, तो या तो हम पे एक टैग लग जाता है नॉर्मल क्रिटिक्स के ऊपर कि भाई फलाने के दोस्त हैं तो अच्छा लिख दिया, फलाने से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है
तो बुरा लिख दिया, फलाने ने ये किया, तो ये वो चीजें हैं जो एक सॉरी टू से अनप्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर ये चीजें ज्यादा निकल के सामने आती हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्रिटिक्स को ना ग्रूम किया जा रहा है, ना क्रिटिक्स एक तरह से खुद ग्रूम होने की, कुछ लोग हैं जो कोशिश कर भी रहे हैं। ठीक है, बैंड वैगन के अंदर हर कोई आना चाहता है, हर कोई उसको ज्वाइन करना चाहता है। ऐसे भी ब्लॉगर्स हैं जो फिल्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बचपन से देख रहे हैं, मल्टीपल सिनेमा देख रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ा है, बाय क्वालिफिकेशन बाय एजुकेशन किसी और इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, मगर वो जो एक पैशन होता है उनके अंदर वो है। बचपन में पेरेंट्स ने कह दिया नहीं भाई तुम फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करो, तुम जो है वो जर्नलिज्म ज्वाइन नहीं करो, तुम्हें जो डॉक्टर इंजीनियर एमबीए ये वाली फील्ड्स में जाना है, तो उसने कर तो ली अपने पेरेंट्स की बात मान के, मगर उसके अंदर का जो वो पैशन था वो तो रहा ना। उसने 60s का भी सिनेमा देखा, 70s भी देखा, 50s भी देखा, और अब 2000s का भी देख रहा है। तो उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास रेफरेंसेस भी हैं, उसके पास कुछ स्टडी मटेरियल भी है जो उसने अपने लिए इस्तेमाल कभी ना कभी शौक में किया होगा। तो ऐसे भी हैं, और ऐसे भी सॉर्ट ऑफ क्रिटिक्स बने हुए हैं वॉनाबीज, जिनको ये नहीं पता कि नदीम साहब जो हैं वो पाकिस्तानी एक्टर हैं, या पहले इंडिया में उन्होंने कोई फिल्म्स की थी फिर पाकिस्तान में आ गए। मुस्तफा रशी साहब जो है वो हार्डकोर उर्दू फिल्में करते थे या पंजाबी फिल्में करते थे। सुल्तान रही साहब कौन थे, तो उनको ये भी नहीं पता। उनको ये भी नहीं पता कि फवाद खान ने जो है वो कितनी फिल्म्स की हैं। और तो जिनको ये भी नहीं पता और वो कहें कि फलानी फिल्म के अंदर इन्होंने ये मतलब तारीफ कर दी, बुराई कर दी, बिला वजह बैश कर दिया, जस्ट टू गेट इनटू द अटेंशन वाली चीज, राइट, वो उस तरह के लोग भी हैं। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो है यहाँ पर। कोई पब्लिकेशन भी इनफैक्ट ऐसा सपोर्ट नहीं कर रही होती है। अगर किसी के रिव्यूज पे अच्छे रेटिंग्स आते हैं, एंगेजमेंट क्रिएट हो जाती है, या एक और चीज है थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बन जाती है क्योंकि उससे हिट्स मिलते हैं, तो उनके रिव्यूज को थोड़ा ज्यादा पब्लिश करने के वो चाहते हैं कि ज्यादा पब्लिश किया जाए उनके रिव्यूज। ठीक है, सही है। Now I'll move on with you, Shafiq. I'll ask, and I'll move on. Yes, yes, Rahul. Yes, of course. Can I add on to what Shafiq said? Yes, yes, right, of course. Dude. You talk about people growing up watching films and 60s, 70s ka cinema dekh liya and all that, and there are a few who are aware of the history of film in Pakistan and South Asia. But the thing is, another issue that we face here is that एक तो चलो फिल्म का आइडिया होना एक अलग बात है before you become a film critic, but you should at least know how to write, at least form a sentence. यार एक जुमला तो लिख लो सही से बिना गलती के, वो चीज है ही नहीं। एक सॉरी बात बोलूं आपकी लिखने से मुझे याद है, and I'll let you continue. You know when you published my review for my film, when you had written the review for the film, मुझे अभी तक याद है आपके वर्डिंग्स और आपका वो जो पैराग्राफ था, किसी ने उठा के someone took the same words and published them on another portal under their own name, and I was like, यार वो I think your I don't remember the tagline, थोड़ा delay something, but वही word उठा के किसी ने और लगा दिए थे। ये भी हमारे पास that has happened. That has happened hundreds of times with me. मुझे बाद में पता चलता है, मुझे थोड़ा जिले के रिव्यू का तो आज अभी तुम like directly तुमसे पता चल रहा है, but ये कि I have seen that happen hundreds of times and I don't even bother anymore, man. I mean, this is what they do. This is their livelihood. Just copy paste मारना. But the thing is, you should know how to form a bloody sentence, यार. At least एक जुमला तो लिख लो. I have seen इसी तरह के the passionate people who have watched hundreds of films, thousands of films, and they would write something like can or could का यार फर्क नहीं पता यार, मतलब at least know the basic language before you call yourself a writer, and then you can come to talk about film criticism तो बाद सीखने के बाद की बात है, at least लिखना सीख लें आप पहले, at least form an expression. So that's something that we don't have either. Before film criticism, we need to groom people and teach people how to write, essentially. ठीक है, तो शफीक, I'll ask you the question. Go on to Rahul. अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं very honestly मुझे कोई I do not know the details of हमारी पुरानी पाकिस्तानी इंडस्ट्री सिनेमा में पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ समझने की, लेकिन जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे शुरू हुई तो मैंने भी कोशिश की मैं फिल्म बनाता हूँ। जब से हमारी फिल्में बनना शुरू हुई, मैं रिव्यूज की बात कर रहा हूँ। Now, when my film was released, I felt that when reviews and criticism was done, I felt they were more real.
they were more subjectified, and people were blunt. People would write honestly, people would give you the honest opinion. ओवर द इयर्स मैं देख रहा हूँ ये डिक्लाइन होता जा रहा है. मतलब कि अगर आपकी एक बुरी फिल्म भी आ रही है, एंड प्लीज एनी फिल्म मेकर लिस्टेड डू नॉट टेक इट द रॉन्ग वे, अगर आपकी एक बुरी फिल्म भी आ रही है, आप उस बुरी फिल्म को जो है एक बड़ा ही हल्का हाथ रख के ठंडे हो गए हैं क्रिटिक्स. अब जो है ना एक लॉबिंग बनती जा रही है कि यार छोड़ दो, चांस दे दो. भाई क्यों चांस दे दो? आप ने एक अगर ऑनेस्टली, एम आई फीलिंग दिस वे, और हैज इट कंप्लीटली टेम डाउन नाउ? ठंडा माहौल हो गया है, हाँ यार दोस्तियां यारियां बढ़ गई हैं, अंदर अंदर का सिस्टम हो गया है, या आई कुड बी रॉन्ग, गो ऑन. एंड व्हाई डिड दैट स्टॉप? बाय द वे, व्हाई डिड दैट स्टॉप व्हेन दिस वाज वेरी हार्डकोर, व्हेन वी वर वेरी रियल विद दिस? ये क्यों अब ठंडा हो गया अचानक से? एंड I'll go to Rahul after that. Yeah, बताएं. ओके, आपने जो बातें की हैं वो बिल्कुल सही हैं, और आपने लॉबी का टर्म यूज किया, आपने दोस्तियां टर्म यूज किया, आपने ठंडा माहौल यूज किया. ये सब हो गया है, उसकी बहुत सारी वजूहात है, और जो मेन वजह है उसकी वो ये है कि हर आदमी शायद फेम चाहता है, हर आदमी सही लोगों के साथ कनेक्ट होके अपने आप को प्रमोट करना चाहता है. तो बहुत से लोग ऐसे आए जो किसी ना किसी के साथ मिल गए, जुड़ गए, और उनकी फिर वो फ्रेंडशिप्स ज्यादा चली. रिव्यू का ये हाल हो गया कि अगर फिल्म, जैसे किसी जमाने में किसी के बारे में कहा जाता था कि फिल्म आती है और ये रिलीज होने के 2 दिन 3 दिन के अंदर इसका रिव्यू करके ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर देते हैं. वो ये हुआ कि अगर फिल्म अच्छी नहीं आई तो एक एक हफ्ता गुजर गया, उसका रिव्यू नहीं आया. बहुत टाइम बाद उसका रिव्यू निकाला गया और बहुत ही उसको हल्का हाथ रखा गया. सेकेंडली, इसमें थोड़ी सी आप यूं कहिए कि मार्केटिंग का भी हाथ है. टीम्स होती हैं, पीआर टीम्स होती हैं, उनका काम होता है कि अच्छे हमारे जो है वो इमेज आना चाहिए. सो कुछ ऐसे राइटर्स भी होते हैं जो शायद उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, बिल्कुल हर आदमी के प्लस एंड नेगेटिव्स होते हैं, हर शोबे के अंदर ऐसे लोग होते हैं, और कुछ आज भी ऐसे हैं जो ब्लंटली लिखते हैं, जो सच सच लिखते हैं, अच्छा लगता है अच्छा लिखते हैं, बुरा लगता है बुरा लिखते हैं. तो अब मेरे ख्याल से लॉबीज भी शायद थोड़ी क्रिएट हो गई हैं. प्लस जहां तक मैं ये देख रहा हूं, दोस्तियों की वजह से, वाकफियत की वजह से अगर कुछ अफेक्ट हो रहा है तो वो पाकिस्तानी सिनेमा अफेक्ट हो रहा है. क्वालिटी नहीं निकल के आ रही है ऑडियंस को. यहाँ कभी कभी तो बिल्कुल वो बताया जाता है जो फिल्म के अंदर होता ही नहीं है. मतलब ऐसी चीजें भी बता दी जाती है कि फिल्म के अंदर ये भी होगा ये भी होगा, आपको ऑडियंस बहुत एंजॉय करेगी. तो फिल्म के अंदर कोई भी लेमैन जाके भी देखता कहता है ये तो था नहीं, ये मुझे क्या पढ़ा दिए या क्या बोल दिया स्क्रीन के ऊपर आके. सो दीज आर द फैक्ट्स एंड हार्श रियलिटी, आई वुड से. ठीक है, राहुल, I'll go on to the same subject. ठंडे तो हम हो गए हैं. क्या ऐसा भी है कि अब जो है ये एक बिजनेस बन चुका है कि क्रिटिक को आप थोड़ा सा एक फाइनेंशियली इन्वॉल्व कर दो कि यार देखो, या तो फिर लिखो नहीं, या तो फिर लिखो लेकिन अच्छा लिखो, एंड it has turned into a business as well. Wasn't it always a business? Because as far as I know, I have seen these so-called film critics and journalists and bloggers who are also managers of the same artists they are reviewing. You know what I mean? Matlab, how on earth can you do both at the same time and call yourself a legitimate, objective film critic and journalist? Like that's stupid, and that's idiotic to an extreme degree, I would say. It was always a business. They were doing it कि आप उनको फ्री पासेस मिल जाएंगे, किसी को फ्री प्रीमियर्स की एंट्रीज मिल जाएंगी, एंड गिफ्ट हैम्पर्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दे आर हैप्पी विद दैट. And they're absolutely happy and content with mediocrity and selling out, and that justifies their way of living. And I don't know if I should criticize that, but I mean, if you're in it for that, then you will do something as stupid as selling out. और I mean, किसी और का कुछ नहीं जा रहा है इसमें. आपके एक पेड रिव्यू पढ़ के पता चल जाता है यार. मतलब कम ऑन, इट्स वेरी इजी टू रीड समथिंग एंड फिगर आउट कि यार ये तो इसके तो पैसे खिलाए हैं आपने. एंड आई कैन टेल दैट बिकॉज लाइक इफ I don't want to name any film or a filmmaker, but you see hundreds of horrible films here, और उनके रिव्यूज ऐसे ग्लोइंग रिव्यूज आ रहे होते हैं कि मैं मतलब
Roger Ebert would probably be rolling in his grave कि यार मतलब गलती कर दी मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी and you know what I mean. So it was always a business for them, and you can't do anything about it unless you actually teach these people to maintain their dignity and integrity as a professional. You can't just tell them कि भाई अब ऐसा नहीं करो because वो तो पैसे के लिए आए हैं और वो पैसा कर बनाएंगे. सही है. Fair enough. अच्छा ठीक है राहुल, now I'll start with you. um, ये जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, आप जब रिव्यूज लिखते हैं, काफी फिल्म मेकर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं रिव्यूज, काफी बोलते हैं "हाँ, ठीक है यार मेरी फिल्म चली", काफी बोलते हैं मेरी फिल्म बहुत बड़ी हिट थी, काफी लोग बोलते हैं ठंडे पड़ जाते हैं. कुछ फिल्म मेकर्स रिएक्ट करते हैं, दे गेट टू यू, दे क्वेश्चन यू, मतलब यार आप कौन हो, समझते क्यों अपने आप को, आप मतलब कि आपने मेरे बारे में लिख लिया, ये हुआ वो हुआ. दिस कन्फ्रंटेशनल मॉडल व्हेन इट हैपेंस, as a film critic, what do you do? How do you react? How do you see these things? And what would you like to say to these filmmakers who cannot take criticism and they think that यार हमने कोई बहुत ही तोप फिल्म बना दी है और ये हमारी फिल्म जो है ये फिल्म क्रिटिक को समझ नहीं आई है, ये जो है ये रॉ एजेंट्स हैं, इंडिया के एजेंट्स हैं और ये जो है ये तबाह कर रहे हैं. What would you say about that? Okay. So I have had interesting reactions like over the last several years. Right. There are some filmmakers who take the reviews way too seriously. मतलब इतना seriously तो यार हम भी नहीं लेते. मतलब एक opinion है, अगर किसी का तुम्हारी फिल्म के बारे में गलत opinion है तो खैर हो गई, but like they take it way too seriously. Some have told me कि यार they don't even listen, they don't even worry about it. And a lot of them are good filmmakers, a lot of them are very horrible filmmakers. So to them I would suggest कि भाई at least listen and then see if that helps you become a better filmmaker. If it does, then take it. If it doesn't, then leave it. I mean, it's not harming anyone personally. Right. A review, and like no review of mine has ever been a personal attack on anyone because I mean, of course, I know you, and I मुझे तो बाद में पता चला कि हमारा actually connection है पुराना, but ये कि even then I told you I will write the review honestly, and you saw how good the review was. थोड़ा जी ले. And I told you before कि भाई मतलब सही है दोस्ती वगैरह अपनी जगह, but I am not going to hold back just because I know you. And that's the same policy I follow with everyone. What happens is, I think to be able to ignore a review or a film critic or overall and आपकी कोई फिल्म का criticism कोई भी एक उस स्टेज पे आप इग्नोर कर सकते हैं जब आपको पता हो कि वो किसी अनक्वालिफाइड पर्सन का ओपिनियन है. सही है. अगर मुझे गली में चलता कोई बंदा बोल देगा कि यार मतलब तुम्हारी फिल्म जो थी ना वो मुझे पसंद नहीं आई, एंड आई नो दैट आई हैव मेड अ फिल्म एज अ फिल्म मेकर जो केटर करती है आपके अवांट-गार्ड न्यूयॉर्क के 30s 40s सिनेमा वाले टेस्ट के जो बंदे हैं उनके लिए मैंने फिल्म बनाई है. और अगर मुझे शांति नगर का कोई बंदा आके बोलेगा कि मुझे फिल्म पसंद नहीं आई तो मैं बोलूंगा ऑब्वियसली तुम्हें पसंद नहीं आएगी यार, मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस इट्स नॉट फॉर यू एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन. बट then I would take his opinion seriously if he knows about that cinema and then he points out something कि यार मतलब ये वाला तुमने ये कोशिश की है and this didn't work, and then I would take his opinion or her opinion very seriously, and if I agree with it then I'll work on myself. And that's something that I think the filmmakers should have that attitude कि सुनो आप सबकी लेकिन don't just like become so emotional, don't take it so personally. इतना offended होने की जरूरत नहीं है because nobody is direct like targeting you on a personal level. We don't even know you. We just interviewed you like a couple of times. We met you a couple of times at at an event or wherever, and then that's pretty much it. We are not friends. We are professional acquaintances. Like you don't owe me anything. I don't owe you anything. And if I'm saying something bad about your film, I will justify it. If I don't, then come talk to me directly. Question me and I will respond accordingly. आपकी अगर question valid होगा तो I will work on myself. But if not, then that it should be a relationship which nurtures the industry. मैं वही कह रहा था कि a critic and a filmmaker should not be fighting against each other. They should be helping each other to help the industry grow. And that's something I think we have forgotten, and like we actually never really realized it. And that's why probably the industry is dead right now, I guess. So
Yeah. Yeah, सही है तो ठीक है Shafiq, going on to this, I mean I do know that Rahul has written reviews and I know probably I asked him that he's got the thing. How about with you? अगर आप भी काफी blunt हैं अपने opinions में, आप भी काफी openly लिखते हैं to the point where even when I was even a digital marketer for a film and when we were working professionally, and if you had to write something which was your own opinion, people thought that मैंने इन्फ्लुएंस किया आपको लिखने के लिए तो and they were reaching out to you, so how do you deal with this personal attack? Do people actually message out to you? What do you say to them? या क्या क्या आपका क्या इस पे होगा, दो तीन थोड़े से थॉट्स? देखिए, शुरू में जब भी कोई चीज नई होती है तो तकलीफ भी होती है, आदमी रिएक्ट भी करता है, कभी सही रिएक्ट करता है, कभी गलत रिएक्ट करता है। ओवर द इयर्स मुझे एक चीज ये रियलाइज हो गई कि कुछ लोग सिर्फ आपको लेट डाउन करने के लिए बहुत सी बातें करते हैं, जिसके पीछे कोई सदाकत, कोई सच्चाई नहीं होती है, कोई एविडेंस, कोई कुछ ऐसा नहीं होता है, वो बस बात से बात निकालते हैं। तो मैं अब बहुत से लोगों को रिप्लाई नहीं करता, मैं उनसे अक्सर बात नहीं करता। बहुत से ऐसे फिल्म मेकर्स भी हैं कुछ जिन्होंने रिव्यू पब्लिश होने के बाद कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो मैंने कॉलर आईडी पे नंबर आ जाता है तो पता चल गया कि किसी का है, तो मैंने फोन नहीं रिसीव किया। मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू, मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, तो वहां पे लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको रिस्पॉन्स नहीं देता जब तक कि वो चीज थोड़ी सी हल्की ना हो जाए। और उसके बाद मैं सिर्फ एक कहता हूँ कि दैट वाज ओनली माय ओपिनियन। आपकी फिल्म अगर अच्छी है तो चलेगी, ऑडियंस उसको पसंद करेगी। कोई कितना बड़ा क्रिटिक हो, कोई ऐसा क्रिटिक एक्चुअली नहीं होता जो किसी ऑडियंस को रोक सके, क्योंकि अगर मैं कितनी भी बुराई कर दूं, लेट्स से सलमान खान की फिल्म की, वो कैसी भी हो, मगर उसका फैन उसकी फिल्म को देखने जाएगा। आज भी उसको 100, 200, 300 करोड़ मिलेंगे। टाइगर श्रॉफ की कोई फिल्म आएगी, बाकी फ्रेंचाइज की उसको 200, 300 करोड़ मिलेंगे, चाहे मैं उसके बारे में कुछ भी लिख लूं। क्रॉस बॉर्डर कितने बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, वो कुछ भी किसी के बारे में लिखते हैं। जो फैंस हैं, जिनको ट्रेलर पसंद आ गया, जिनको फिल्म पसंद आ गई, वो रिपीट वैल्यू के लिए जाएंगे। हमारे यहाँ अगर फैंस होंगे, अलबत्ता हमारे यहाँ फैंस ही नहीं है, सॉरी टू से, किसी के। तो द पॉइंट इज कि बहुत से लोग बिला वजह ये चीज करते हैं कि उनकी फिल्म को पसंद नहीं किया गया। मैं आपको ये एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके चैनल्स पर, जैसे सोशल मीडिया चैनल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, स्ट्राइक्स डलवाते हैं, आपकी रेटिंग लो करवाते हैं, ताकि आपका चैनल जो है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए या तो बैन हो जाए या रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ये भी होता है और बहुत से लोगों के साथ ये हमारी इंडस्ट्री के अंदर हुआ भी है। क्यों? उन्होंने ब्लंटली उन्होंने कुछ सच्ची बातें बता दी जो शायद फिल्म मेकर्स को पसंद नहीं आई या उनकी टीम को पसंद नहीं आई। तो ये इससे डील करना सिर्फ एक तरीका है, रिस्पेक्टफुली उनसे कहते हैं वो मेरा ओपिनियन था, मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, और अगर आपको पसंद आए ठीक, नहीं पसंद आए तो लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन। आपकी ओपिनियन फिल्म बना के जिस तरह से आपने प्रेजेंट की, वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं किसी को, कोई क्रिटिक मेरा नहीं ख्याल कि ये कह रहा होगा ये फिल्म मत देखो मत देखो मत देखो, कोई ऐसा नहीं बोलता है। लोग जो है वो उसको बताते हैं कि अगर आपको फलानी फिल्म पसंद आई है तो शायद आपको ये फिल्म पसंद आती है, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कंट्रास्ट है या नहीं है, वाइस वर्सा। तो एक तो ये चीज है, इस तरह से थोड़ा सा फासला, जितना फासला रखें। इसलिए मैं शायद दोस्तियों के भी इतना कायल नहीं हूं कि अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप सबके साथ रखिए, इज्जत सबकी कीजिए, तमीज से बात सबसे कीजिए। मगर दोस्तियों में अक्सर ये होता है कि लोगों को शायद एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं कि फलाना मेरा दोस्त है तो वो मेरे लिए शायद सॉफ्ट कॉर्नर रख के कुछ अच्छा भी बोल दे। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, जिसमें से आपको उसी वक्त आप अपने आप को निकाल सकते हैं जब आप प्रोफेशनल होते हैं, जब आपको पता है कि आपका काम आपसे क्या डिमांड करता है और आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो क्या डिमांड करती है। तो अगर सामने वाले भी प्रोफेशनल होगा, सही में आपके साथ अच्छे टर्म्स रखेगा, तो वो आपको कभी फोर्स नहीं करेगा, कोई ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन जब भी कभी कभी मैंने देखा है कि आप अक्सर जो है when देयर इज अ फिल्म एंड you go to the theaters and sometimes when you take pictures of और वो जो आप स्क्रीन की पिक्चर लेते हैं, भाई यहाँ पे 2 लोग आए, 4 लोग आए हैं, when you are taking these pictures, when you subjectifying it, are you actually telling people कि भाई these are bad films and don't watch it? और मतलब कि इसके पीछे क्या पॉइंट है when you publicize this, कि what are you trying to establish कि यार मतलब खत्म करो बेकार कंटेंट को, और is it something that I just want to know कि इससे क्या अचीव होता है when you are doing that?
इसमें अक्सर पॉइंट ये होता है कि कुछ सिनेमाज ऐसे हैं जिसमें अगर 5 सीट्स या 7 सीट्स बुक ना हो तो वो फिल्म स्टार्ट नहीं करते। उसमें मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अपना पहली चीज वो शेयर कहाँ होते हैं, वो होते हैं मोस्टली फिल्म ग्रुप्स के अंदर, जो हमारे या तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, या अगर मेरा एक लिमिटेड फिल्म ग्रुप कोई बना हुआ है जहां पर मुझे पता है कि ज्यादातर या तो फिल्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, क्रिटिक्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, या पब्लिकेशन से जिनका ताल्लुक है, उनसे सिर्फ एक पॉइंट ये डिस्कस करना चाहता हूं, जो अक्सर मैं कुछ अच्छे जो मेरे जिनको मैं सही क्रिटिक समझता हूं, वो उनके साथ मेरी एक हम आहंगी या बातचीत होती है। हमारे यहाँ ट्रेलर क्योंकि अच्छे नहीं बनते, हमारे यहाँ फिल्म की ओवरऑल क्वालिटी अच्छी नहीं होती, हमारे यहाँ फिल्म्स पे उस तरह से क्रिटिकली नहीं सोचा जाता फिल्म को रिलीज करते हुए, तो लोग नहीं आते। आप कितनी हमारे बहुत अच्छी कुछ फिल्म्स हमारे यहाँ बनी है, मगर उसको देखने लोग नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मेरी एक कोशिश होती है कि मैं लोगों को ये समझा सकूं कि भाई ऑडियंस को सिनेमा में लाना, ये भी फिल्म मेकिंग का, अगर नहीं तो आपने जितने सारे एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, मार्केटिंग पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा कुछ रोल होता है। लेट देम हेल्प यू आउट इन दैट, क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छी फिल्म सिनेमा में आती है। मैं एग्जांपल दूंगा लाल कबूतर की, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म जो मैंने पर्सनली, मुझे अच्छी लगी, और क्रिटिकली भी उसको सब लोगों ने ही पसंद किया, किसी ने उसको कोई ऐसे बुराई नहीं की है। मुझे अफसोस पर्सनली हुआ कि इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी फिल्म, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नए लोगों के साथ, जो कि हार्डकोर फिल्म स्ट्रीम वाले लोग नहीं थे, वो मैजिक नहीं क्रिएट कर पाई जो लेट से शायद 90s के अंदर आपकी सत्या ने किया होगा, शूल ने किया होगा, उस टाइप की फिल्म्स ने किया होगा। हमारे यहाँ नहीं हो सकी क्योंकि लोग उस फिल्म को देखने शायद उस तरह से नहीं गए। उसके पीछे क्या रीजन होगा, मेरी अपनी छोटी सी ये राय है कि शायद मार्केटिंग, शायद उसकी बस क्रिएशन, शायद उसके प्रोमोस को सही तरह से प्लेस करना या प्रमोट करना या मल्टीपल चैनल्स के थ्रू जो है वो पुश करना, ये वजह हो सकती है। तो आई थिंक आई आंसर्ड दैट। Yes, absolutely, absolutely. अच्छा राहुल, कमिंग टू यू, ये जो एक फिनोमेना शुरू हो गया है कि ये जैसे आपने बोला पीआर मैनेजर्स का, और मतलब यू बिकम अ पीआर मैनेजर, देन यू आर आल्सो अ रिव्यूअर, एंड देन यू आर आल्सो मैनेजिंग द आर्टिस्ट, एंड देन यू आर आल्सो रिव्यूइंग रिव्यूज एट द सेम टाइम, but at once upon a time you would also publish Facebook statuses against film, but now you've gone completely quiet as well. ये अगर इसी तरह से नॉर्म चलेगा तो फिर मतलब कि हम किस तरह आगे बढ़ेंगे? I mean, being a film critic, and I do not know why you stopped writing for the Tribune. I have no idea. You should. I mean, you were one of the people actually read as well. ये इतना ठंडा माहौल जो हो गया है, is it because of selfie लेना बहुत जरूरी है to show your powerful thing कि यार हम जो है इस आर्टिस्ट के साथ कनेक्टेड हैं और हम जो है आगे बढ़ेंगे, एंड ये और ये, is it going to change? Should it change? Should it not change? How is it going to go forward with your thoughts? Okay, so first, I left Tribune because I wanted to. I was actually sick of watching the same old trashy films on cinema, and even though I was, of course, it was my job, but come on, man, I've had enough. मैंने जब से छोड़ा है तब से I haven't watched a Pakistani film in cinema. I haven't watched a Pakistani film at all. Like I was like, okay, I am done with this because not because. एक तो मतलब of course selfie लेना and all of that is one thing. I don't do that much. I don't think I do that. Yeah, but ये कि अगर ये आप देखिए critics की responsibility है ये. This is your responsibility as a writer to be honest to your job and not become a selfie वाला guy, not be known as someone के जो आता है प्रीमियर्स पे सेल्फी लेता है और अच्छा रिव्यू लिख के घर चला जाता है। एक सेकंड, सेल्फियां मैं भी लेता हूँ, मुझे भी बहुत शौक है आर्टिस्टों के साथ। नथिंग उसमें जो देख रहा है वो माइंड ना करे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, यू कैन गो ऑन। लोग आजकल बहुत जस्टिफाई कर रहे होते हैं अपनी रिलेशनशिप बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बताने के लिए, यार जस्ट बिकॉज आई एम eating with them, I am going to film with them, and now you can carry on. Yes, that's exactly right. कि आप
दिखा रहे हैं कि यार मैं इन लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ, सो यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली रेज योर अपनी स्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं इस तरह से, ये सेल्फियां लेके. Essentially that's for social media, like we are doing on social media. Everyone does that, nothing wrong with it, but when it interferes with the dignity of your job, with the integrity of your profession, then it becomes an issue. अगर आप दिखा रहे हैं कि यार मैं इनके साथ उठता बैठता हूँ, चलो ठीक है, but then you go on and falsely praise a bad film, then it becomes a problem, isn't it? Like obviously तब ये कैसे चलेगा, ये नहीं चलेगा. It's very simple answer कि नहीं चलेगा, इस तरह से तो नहीं चलता और ना ही चलेगा. और आप देख रहे हैं कि अब क्या हालत हो गई है. I'm going to stop you. अभी 2019 में जो फिल्में आई हैं, and very professionally, I'm not going to name all the films. I was also a PR manager as well. था ये ओपन था, बहुत ओपन था कि हम अगर फिल्मों ने एवरेज किया है, ओपनली फिल्म ब्लॉग्स के अंदर, ओपनली हर जगह पे फिल्म्स को डिफेंड किया जा रहा था. बहुत बहुत बड़े बड़े राइटर्स जो थे, जो हमारे जो करते थे, उन्होंने बोला कि यार देखो चलने दो फिल्मों को, इस तरह नहीं होगा तो फिर हम किस तरह करेंगे, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है. ये बहुत कॉमन हो गया है, मैं इसके बारे में बड़ा वोकली लिखता भी हूँ, लेकिन I mean, it's happening. How can we stop this? This is actually becoming a very common norm. कि यार नहीं, let's support Pakistani cinema. I mean, it might be bad content, but let's support it. यार 2016 में जब मेरी फिल्म आई थी, उस वक्त भी ये रख लेते यार, let's support Pakistani cinema. मैंने क्या गलती की थी कि ये एक्चुअली इससे पुराना फिनोमेना है. लेट्स सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा. आई मीन यही या तो हमारा सेलिंग पॉइंट है फिल्मों को बेचने के लिए, because our films are not really up to the mark, and that's the only way we sell them, and that is an issue at the core of it. अगर आप वो सेल्फियां और वो प्रमोशन और वो तो बात की बात है, at least make a good film so you don't have to rely on support Pakistani cinema, you know. At least make a bloody decent film कि अगर आपको ये ना भीख मांगनी पड़े कि यार प्लीज हमारी फिल्म को सपोर्ट करें. ये that is the wrong way to go about it, and you can't like avoid it unless you actually work on yourself. The thing is, we are so afraid of admitting कि हमारी गलती है यार, हम लोग admit नहीं करते कि हमारी बुरी फिल्म बनाई है, खत्म बात. We will work on it the next time. Like at least if you don't want to admit it in public, at least admit it to yourself, so that you can work on yourself as a filmmaker and then become a better filmmaker and make a kick-ass film. Not everybody's first film is going to be Taxi Driver. Not everybody's first film is going to, you know, be as good as Eraserhead. Of course, like not everybody is a genius, right? So the only thing that you can do is be honest to yourself and be honest to your craft. At least be honest to your craft ताकि आप at least grow कर सकें. And only then you can actually take ownership of the cinema, your whole industry, because nowadays everyone is in it for themselves. Like you can't say कि हर कोई बोलता है कि यार पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें. पाकिस्तानी सिनेमा for them is only their film, not anybody else's film. Agreed, 100%. You know, so that is the mentality that we need to get out of. Fair enough. ठीक है, शफीक मैं आपकी तरफ आऊंगा. I do know कि 45 minutes to an hour का सेशन था, but we'll give it 15 minutes more. Pakistani cinema itself right now, where we stand, the Pakistani film industry, the Pakistani film fraternity, क्या नजर आ रहा है आपको? Where are we going? Are we heading somewhere fruitful? Are you seeing anything positive? एक दो फिल्म के अभी भी टीजर्स आए थे कोई रिसेंटली. क्या हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या हम बस अब डर के ईद पे रिलीज करेंगे अच्छी फिल्म और ग्रो करेंगे? Do you actually think there's a promising outlook on the Pakistani film content and industry as the way it's coming out? अच्छा राफे, मैं एक चीज इसमें पिछले सवाल से ऐड करूंगा अबाउट दी सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा एंड देन द फ्यूचर ऑफ से पाकिस्तानी सिनेमा. आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो भी ये कहता है कि सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, मेरे बैकग्राउंड में एक चीज आ जाती है, सबकॉन्शियस में एक चीज आ जाती है कि ये शायद हमें बेवकूफ बना रहा है. हमें से मुराद एक आम ऑडियंस को ये बेवकूफ बना रहा है. रीजन, पहला सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा हुआ था जीवा फिल्म के साथ, सपोर्ट पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि उसमें उर्दू फिल्म को वो लेकर बहुत ज्यादा आए थे. उस वक्त पंजाबी फिल्म बहुत बन रही थी. दैट वाज अराउंड 90s. देन आया आपका ये दिल आपका हुआ,
जावेद शेख साहब की अर्ली 2000 टू मिड 2000 के अंदर, कि भाई बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, सारे जो सिंगर्स हैं वो बॉलीवुड से लिए हैं, कुमार सानू, उदित नारायण और सोनू निगम के उसके अंदर गाने थे, बहुत फिल्म बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, गुड। वो भी एक हमारा सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, रेवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री था। देन आपकी आई खुदा के लिए। खुदा के लिए के बाद से अभी हम चौथी पांचवी बार जो है ये अगेन सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा कर रहे हैं। मैं लोगों को सिर्फ बार बार एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, पाकिस्तानी इंडस्ट्री 47-46 की बनी हुई है, वो 50, 60, 70s के अंदर नहीं बनी। अच्छे राइटर लेकर आ जाओ, अच्छे परफॉर्मेंस लेके आ जाओ, अच्छे डायरेक्टर्स लेके आ जाओ, विजनरी फिल्म मेकर्स लेके आ जाओ। बच्चे घूमते हैं, नापा है, कितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें इतने अच्छे बच्चे काम कर रहे हैं, कोशिश करना चाहते हैं। आप उनको चांस नहीं देते, आप चांस देते हैं उनको जो किसी एक मीडियम में पिट चुके होते हैं, तो वो दूसरे मीडियम में आ जाते हैं, और फिर जब वो उस मीडियम से पिट जाते हैं वापस पिछले मीडियम में चले जाते हैं। दिस इज दी हार्डकोर रियलिटी, लेट्स डाइजेस्ट इट, एक्सेप्ट इट। तो ये तो हमारा जो अगर कंटेंट अच्छा होगा फिल्म खुद बोलेगी, और ऐसी फिल्म है जिन्होंने बहुत से बिजनेस किए हैं। अगर कंटेंट, परफॉर्मेंस, एक कंप्लीट पैकेज अच्छा नहीं देंगे, आप फिल्म मेकर्स नहीं देंगे, तब वो फिल्म बाहर निकल के नहीं आएगी। सो ये तो हमारा हो गया रेवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। तो मैं सबसे ये कहता हूँ जो ये टर्म्स यूज करे ना, सपोर्ट पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, तो समझ लो कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। 80% चांसेस है कि बना रहा है, क्योंकि अगर उसको पता है कि मेरी फिल्म अच्छी है, कोई इधर की उधर कोई चीज तक फिल्म चल जाती है, लोग पसंद करते हैं, बाद में वाह होती है, इंटरनेशनल मीडियम से उसको लेने के लिए कोशिश करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द एक्चुअल क्वेश्चन जो आपका था कि फ्यूचर क्या है, 2019 के अंदर, 2019 के अंदर जितनी फिल्म्स आई हैं, उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। आखिर में जितनी फिल्म्स आई वो अच्छी नहीं रही, उनके काफी सारी वजूहात थी। लोग पर्सनल हो जाते हैं, वो भी आपका सवाल एक आया था कि लोग पर्सनल हो जाते हैं। भाई आप समझें तो सही, अगर कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो वो आपको बैश नहीं कर रहा, वो शायद कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, रीड बिटवीन द लाइंस के क्या चीज अच्छी थी जो आप नेक्स्ट टाइम उसको एड ऑन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो किसी और से कंसल्ट करके, जिसको आप समझते हैं कि आपको अच्छी राय दे सकता है, फिल्म मेकर है, आपका दोस्त है, आपकी फैमिली है, उससे पूछ सकते हैं कि भाई क्या बेहतरी ला सकता हूँ, क्योंकि एवरी प्रोजेक्ट इज देयर बेबी। यही बात होती है ना, हम लोग ये कहते हैं कि दिस फिल्म इज माय बेबी, मेरे लिए सारी फिल्में बहुत अच्छी हैं, तो अगर अच्छी है तो उस बेबी को मेल न्यूट्रिशन का शिकार क्यों होने देते हैं? तो बेसिक पॉइंट, आप उसके अंदर वो चीजें डालिए, वो चीजें उसको प्रोवाइड कीजिए जिससे वो स्ट्रांग बने, उसको स्ट्रेंथ मिले। हमारे यहाँ फियर ऑफ रिलीजिंग फिल्म्स बिसाइड ईद या नेशनल हॉलीडेज बहुत ज्यादा है। 6-7 फिल्म्स ईद पे रिलीज करना, एक दिन पे रिलीज करना, एक डेट पे रिलीज करना, फॉर मी इट्स रिडिकुलस, क्योंकि आपके पास ना तो इतने सिनेमास मौजूद हैं, ना इतनी आपकी ऑडियंस है कि वो ये डिसाइड करे कि मुझे ये फिल्म देखनी है, दूसरी देखनी है, तीसरी देखनी है, चौथी देखनी है। एक लगाएं, उस पर ज्यादा ट्रैफिक रखें कि लोग आके उसको देखें, मैक्सिमम 2 कर दें ताकि कंपटीशन रहे, अच्छी फिल्म्स बन सके। कम से कम ये सोच के कि यार सामने वाला अच्छी फिल्म बना रहा है, तो मैं अपनी फिल्म अगर उसके सामने रिलीज करूं तो मेरी फिल्म जो है वो अच्छी हो कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर, ताकि लोग उसको पसंद करें थोड़ा ज्यादा दूसरी फिल्म से। सो कमिंग ईयर या इस ईयर का तो आई डोंट नो कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि एक तो ये पेंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन चल रही है, दूसरा बहुत सी कुछ ऐसी फिल्म्स थी जिनके अनाउंसमेंट सॉर्ट ऑफ हो गई थी इंटरनली कि वो रिलीज होंगी ईद के ऊपर, मगर अब शायद उनकी डेट्स आगे स्केड्यूल कर दी जाएं। और नेक्स्ट ईयर क्या आ रहा है आई एम नॉट श्योर कि मतलब स्टार्स हैं फिल्म के अंदर, स्टार्स हैं, मगर अगर किसी का टीजर भी मैं देखूं या टीजर्स ही आए, ट्रेलर तो सच नहीं आए, तो वो टीजर मुझे किसी ना किसी पिछली फिल्म की याद दिलाते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी बनाई हुई है, और उस पे वो अच्छा खासा सुन भी चुके हैं, किसी एक से नहीं बट मल्टीपल पीपल से, इंडिविजुअल से, जिसमें क्रिटिक्स भी इन्वॉल्व है, जिसमें एक आम आदमी भी इन्वॉल्व है जो फेसबुक पे जाके अपना गुस्सा निकालते हैं। देखिए, फिल्म एक महंगा मीडियम है एक पाकिस्तानी अवाम के लिए। 700, 800, 900, 1000 रुपए का टिकट है। अकेला नॉर्मली कोई आदमी नहीं जाता, कम से कम 2 से 3 लोग फिल्म देखने जाते हैं। फैमिली वाले हैं 3 से ज्यादा जाएंगे,
वरना कोई कपल है तो शायद 2 जाएंगे, दोस्त हैं तो भी 2 जाएंगे, उसमें बहुत सारे और चीजें एड ऑन होंगी, कुछ खाना पीना भी होगा. सो यू आर टॉकिंग अबाउट 3 to 5,000 of investment for a film. Great. Rahul, I will direct the same question to you on the future of Pakistani cinema and how you seeing the content evolve with also independent cinema पे थोड़ा focus as well. And one more thing I will add to you, is it imperative to have Bollywood Indian cinema back in the playing sectors of Pakistani film industry, or do you think we can also survive on that, adding to everything together? Okay, so first I will address the Bollywood part. I would say yes, because आपका cinema चलाने के लिए you need Bollywood for now, because you're not really self-sufficient as of today, right? You cannot survive. आपकी Bollywood फिल्में सही है, वो भी कचरा ही होती हैं ज़्यादातर, but they at least provide you the financial sustainability to be able to make your own films and Right. and work on your craft, right? So that is the reason they are important. But maybe in 5 to 10 years, like you can maybe put a quota on it, and then give space to your local filmmakers when they are good enough. And वही 10 साल की बात हम कर रहे हैं या 20 साल की बात हम कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सिनेमा के. I see it. It's very inconsistent, and it's very unsure, like everything is right now. But when we talk about Pakistani cinema ka future, I don't see the names that we have right now in the future who will be carrying the Pakistani cinema ka flag. You know, Acha. like Okay. yeah. I don't see most of them. Probably they'll retire. Probably they'll realize that they're not really good filmmakers, so they should go away and give space to the young मैं ones. मैं तो वो भी हो गया. मैंने बोला भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं कहीं और कोशिश करता हूँ. हाँ, सही है. और but the future that you need to keep in mind and give space to is the one that we don't even give a rat's ass about right now, you know. And they are the film students and the film graduates who are making short films in this economy, in this situation today. जो short films बना रहे हैं, Napa, you have people in Karachi University, you have someone like Hamza Bangash, who has won awards internationally at Locarno and everywhere, and won the first prize at Busan for his feature script Mariam, right? And Right, you absolutely. have someone like Saim Sadiq, who won the prize at Venice Film Festival, the first Pakistani ever to do it. And you need to give these people space so they can carry Pakistani cinema into the future, because they are the future of Pakistani cinema, not the people, not the filmmakers who make films about the same old stories that we have been seeing in the last 40 years in Bollywood. आप उनके छापा पाड़ने से, you're not giving Pakistani cinema a new identity. You're just making money for yourself to go on a vacation to Spain or Ibiza or somewhere. That's if that's all you care about, that's not going to lead into the future of Pakistani cinema. The people who are actually passionate about Pakistani cinema are the ones who are making films despite the restrictions, despite the limitations put on them by the mainstream industry. And these are the independent guys like Hamza and Saim and Ali Sohail, and even like Lal so many Kapoor, I think batches. this. Exactly, Lal Kabutar. Yeah, you have these two Harvard graduates who had no idea about film. They come here and they find the gems, right? They find the right people to work with, and they find the right stories to give them, and so they can actually develop a good film. And that takes hard work, that takes passion, and you need to keep an eye out for them. You need to give them more space to lead you into the future, not the names that you have been seeing in the last 10 years who have failed consistently, Right. and they refuse. And a lot of those names are the ones who refuse to grow, who refuse. वो जिद में आ गए कि नहीं, हम लोग को तो यही फिल्म बनानी है और यही तुम लोग को पसंद आनी चाहिए. That's a very Vince McMahon philosophy, and it's really sad, because these people, the veterans, they can really help the young ones, in terms of in some departments where they can help them lead into the future, but they refuse to leave their spot. And that's, I think, the mistake. And like that's the mindset that we need for the future. कि आप इनको जगह दें.
Firstly, thank you both of you. आप लोगों ने you guys came for this. I hope this was completely worth it. There are going to be lots of critics जो हमारे senior critics हैं. I'm not going to name them watching this. Maybe people are going to appreciate this. Maybe people are not going to appreciate this. Maybe I should have asked them as well. But I knew I would get some clear thinking from people I know personally, and I think अगर लोग इसको इन्फॉर्मेटिवली और ज़रा सब्जेक्टिवली देखेंगे तो समझेंगे हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल, मैं जब मेरा सामना हुआ था या मेरा एक्सपीरियंस हुआ था क्रिटिक्स के साथ, तो मुझे नहीं पता था, मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि वी हैड क्रिटिक्स और नॉट। मुझे आई हैड नो आइडिया कि बिकॉज मैं भी आपकी तरह सबकी तरह रॉजर ईबर्ट हो गया या तरह आदर्श हो गया, या मतलब कि जिस तरह से हमारे क्रिटिक्स हैं बाहर, हमने उनको देखा उनको। I used to watch the same, read the same blogs. When I started experiencing critics, I thought that सारे हमारे प्रोफेशनल क्रिटिक्स को थोड़ा सामने लेके आना चाहिए। वी शुड हैव अ सर्कल, वी शुड हैव अ प्रोफेशनल सर्कल इन विच देयर वॉइसेस, इन विच देयर ओपिनियंस शुड बी ऑन द राइट सॉर्ट ऑफ फोरम, और हम इनको इतना आगे लेके आए कि बाकायदा एक बॉडी बने जिसमें ये थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री को मैच्योर करेंगे, ग्रो करेंगे, और ये नाम जो है आगे लेके जाएंगे। मैंने बहुत कोशिशें की थी। इफ यू रिमेंबर पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आई हैड ब्रॉट critics along as well. I had kept it together. I had tried in my own circuit, but then again, some people have other priorities. Some people became PR managers. Some people have other things. So कोई अलग अलग हो जाता है. So just few last thoughts on के to have an active and a professional film industry critics association होनी चाहिए कि हम इस चीज को रेगुलेट करें। नहीं है परवाह, छोड़ दें, चलने दें जैसा हाल है, बस अल्लाह मालिक है। कुछ something to just sum it up with, whether this is important or not. I do think it is important to have a critics association, but the thing is, you need to have enough critics in the first place for it to exist, right? आपके हर किसी को तो आप आने उसमें critics association में नहीं देंगे. I mean, there will only be 4 people in it. अगर आप अभी establish भी करेंगे इसको तो, like 4 people who have legit opinions and who can be taken seriously and who are not just there for fun and for free passes and money, right? Isn't it? So Right, आप पहले क्रिटिक्स को बनाएं, पहले क्रिटिक्स एकेडमी ही तो आप एक establish करें, उनको सिखाएं, और if not here, then you need to have critics who can write well enough to be part of residencies abroad and international film festivals, so they can learn from there and then come back and apply that same learning into their work, and then you will groom critics, और उसके बाद फिर critics academy बनने की बात भी की जा सकती है. You know what I mean? And I don't think we are at that stage right now because we don't have enough like actual credible film critics इतने ज़्यादा. सही है, फेयर इनफ. एंड शफीक, आपके पास भी सेम चीज लेके जाऊंगा कि इस पे क्या है, एंड गिव मी योर थॉट्स. मैं जिस तरह से क्रिटिक को देखता हूँ वो थोड़ा सा, आई डोंट नो इफ आई कैन यूज द टर्म सनकी होता है, who is very much blunt, who share what he feels. तो वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता. तो हमें सबसे पहले ऐसे क्रिटिक्स ढूंढने चाहिए जो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, जो अपने आप को सुपरस्टार ना समझे, वो अपने आप को एक क्रिटिक जो है, जो उनका रोल है वो वही अपने आप को समझे, रादर देन कि वो जो आपने सेल्फी की बात की, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. या और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को वो कहते हैं ना, स्टार से ही सुपर से ऊपर स्टार अपने आप को ना समझे. तो अगर कोई ऐसे लोग मिल के काम करें, अच्छा है, जो किसी पब्लिकेशन से इन्फ्लुएंस ना हो, पब्लिकेशन हाउस से इन्फ्लुएंस ना हो, जो किसी पीआर कंपनी से इन्फ्लुएंस ना हो, जो किसी फिल्म मेकर से इन्फ्लुएंस ना हो, जो दोस्तियां निभाने की कोशिश ना करें, जो है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिनेमा, ऑफ द इंडस्ट्री, उसको सपोर्ट करें, उसके लिए करें. देन इट इज अ वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल थॉट. बिल्कुल होना चाहिए. हम लोग इस बात पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. आपने मास्टर से बहुत सारे इस पे स्टेप्स भी लिए हैं, सब कुछ किया है, मगर यू योरसेल्फ नो कि बहुत से लोग जब साइडलाइन हो जाते हैं तो उनका मौके, उनका एजेंडा शायद कुछ और होता होगा, जो कुछ सन की फिल्म क्रिटिक्स का नहीं होता है. वो वैसे ही सच बोलने की कोशिश करते हैं. वो किसी से ना इम्प्रेस होते हैं, ना किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं. अच्छी चीज होगी तारीफ करेंगे, नहीं होगी नहीं करेंगे. दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ इट. तो आइडिया बहुत अच्छा है. आई जस्ट होप एंड विश कि ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाएं और वो कनेक्ट होना शुरू हो जाए. दैट इज माय व्यू पॉइंट. थैंक यू. एंड बिल्कुल आखिरी सवाल, डू वी हैव 100% merit based jury judging Pakistani award system or we don't? No. पूरी दुनिया में कहाँ है?
Come on, आप मैं तो नाम नहीं लूंगा मगर आप कहीं भी नहीं है, बॉस कहीं है ही नहीं, तो वो नहीं है। शोबिज इज अगेन, हम अपनी सारी बातों को डायसेक्ट करते हुए जाते हैं। शोबिज इज ऑल अबाउट जो दिखता है वो बिकता है वाली चीज। सो वो चाहे कुछ भी हो। no juries, no legit merit. Award should be brand sponsored. And चलें ठीक है. Rahul, Shafiq, this has been an amazing session. I hope it was completely worth it. I know I went a little bit over, लेकिन बहुत मजे की बातें हुई. I would like to thank both of you for this. Thank you, and let's hope that this brings some sort of awareness. नहीं होता आता है हम तो कोशिश करते रहेंगे. कम voice करना बहुत जरूरी है. And let's hope this pandemic ends really well and everyone can get to work. I am also itching to get to work. इंशाल्लाह दूसरी फिल्म भी बनाएंगे इस दफा मेहनत करके अच्छी तरह सोच समझ के. And have a great day. Please keep in touch. Please stay safe and let's pray for the well-being for everyone. It's been a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.